subscribe to our channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सर अब्दुल सत्तार खान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 4.3 द बीव्स 8th इंग्लिश बार भारती इंग्लिश मीडियम। इसका पहले हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे। दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दिस पोएम गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ bees. He shows us how organized and disciplined the bees are. Let's begin. So work the honey bees creature. So work the honey bees creatures that by a rule in nature teach. So work the honey bees creature that by a rule in nature teach the art of order to a peopled kingdom. They have a king and officers of sorts, where some like magistrates corrects at home, others like merchants ventures trade abroad, others like soldiers armed in their strings. Now understand, in this poem, poet William Shakespeare gives a vivid description of the bees and their kingdom. He calls the honeybees creatures that teach the art of order to human beings. He says that the bees have a king and officers for different activities. The magistrate bees do the corrective work. The merchant bees like order to go out and collect food. The soldier bees, who are armed with their stings, loot the summer soft newly opened flowers, or merrily bring home the loot. They take it to the place where the emperor sits. What do you mean by sorts? Sorts का मतलब क्या होता है? Of different types. Magistrates means officials interested with administration of law, venture to do something risky, make boot upon, swoop down, summer's velvet birds, the fresh flowers blooming in summer. So work the honey bees, creature that by a rule in nature teach. हनी बीज यानी शहद की मक्खियाँ क्या करती है? ये ऐसे क्रिएचर है जो डिसिप्लिन नेचर से काम करती रहती है और ह्यूमन बीइंग को वो काम सिखा रही है, डिसिप्लिन सिखा रही है। द आर्ट ऑफ ऑर्डर टू अ पीपल्ड किंगडम। अब आर्ट ऑफ ऑर्डर क्या है? आर्ट ऑफ ऑर्डर एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि डिसिप्लिन तरीक़े से काम करना है। किस तरीक़े से वो आर्ट ऑफ ऑर्डर से काम करती है? दे हैव अ किंग एंड ऑर्डर एंड ऑफिसर्स ऑफ सॉर्ट्स, वेर सम लाइक मैजिस्ट्रेट्स करेक्ट एट होम। और उनके पास बीस के पास राजा भी है, उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट यानी ऑफिसर्स भी है जो अलग अलग किस्म के काम करते रहते हैं। मजिस्ट्रेट का काम होता है करेक्टिव वर्क करना। अदर्स लाइक मर्चेंट्स वेंचर ट्रेड अब्रॉड। अब इसमें कुछ मर्चेंट्स भी होते हैं, जो मर्चेंट भी यानी जो मर्चेंट की जो शहद की मक्खियाँ होती है, तिजारती शहद की मक्खियाँ होती है, वो एक व्यापारी के जैसा, ट्रेडर के जैसा, ताजिर के जैसा काम करती है। वो बाहर जाती है और फूड कलेक्ट करके लाती है। अदर्स लाइक सोल्जर्स आर्म्ड इन दर स्टिंग्स। और कुछ उसमें से सिपाही शहद की मक्खियाँ होती है, सोल्जर्स होती है। वो क्या करती है? वो बाहर जाती है, उनके स्टिंग्स, उनके आर्मार होते हैं, और वो समर सॉफ्टली ओपन फ्लावर्स के जो समर में खुले हुए फूल होते हैं उससे वो लूट लेती है और अपनी लूट घर लेकर आती है। अब ये लूट क्या होती है? आम तौर पर ये वो रस होता है फूलों का जो शहद की मक्खियाँ जमा करके लाती है। दे टेक इट टू द प्लेस वेयर द एम्परर सिट्स। और वो कहाँ ले जाती है? जहाँ पर एम्परर बैठता है। Make boot upon the summer's velvet birds, while pillage they with merrily march bring home to the tent royal of their emperor, who busied in his majesty surveys the singing masons building roofs of gold, the civil citizens kneading up the honey, the poor merchant mechanic porters crowding in their heavy burdens at his narrow gate, the sad-eyed justice with his surely hum delivering over to executors pale the lazy yawning drone. Make a boot upon
swoop down upon summer's velvet bud, the fresh flowers blooming in summer, pillage to rob or loot using violence, busied, engrossed, needing means mixing or blending, surly means bad-tempered, grumpy, delivering, handing over, executors, the ones carrying out the death sentences, drone, a male bee, make boot upon the summer's velvet birds, which pillage they with a merry march bring home to the tent royal of their emperor, who busied in his majesty surveys the singing mason building roofs of gold. अब जो सोल्जर्स की जो हनी बी होती है, शहद की मक्खियाँ होती है, वो लूट जमा करके लाती है और वो किंग के एम्परर के पास जमा करती है। और एम्परर क्या करता है? द एम्परर इज़ बिजी सुपरवाइजिंग द बजिंग मेसन बीज एज दे आर बिल्डिंग द गोल्डन हाइव. The civilian bees are converting the nectar into honey, while the porter bees are bringing their heavy burdens of nectar to the king. The sad-eyed judge, buzzing in a bad-tempered manner, hands over the lazy, yawning male bee to the light-colored executor bees to carry out the death sentence. जो एम्परर होता है, जो बादशाह होता है, यानी रानी शहद की मक्खी होती है, तो वो सुपरवाइज़ करती है जो उनकी मज़दूर शहद की मक्खियाँ होती है, वो क्या करती है? गोल्डन हाइव बना रही है। गोल्डन हाइव यानी शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है, उसे हाइव को, छत्ते को कहते हैं। द सिविलियन बीज आर कन्वर्टिंग द नेक्टर इनटू हनी. अब जो वहाँ की मज़दूर मक्खियाँ होती है या जो वहाँ की शहरी मक्खियाँ होती है, वो क्या करती है? नेक्टर को शहद में, नेक्टर यानी जो फूलों का रस होता है, उसे वो शहद में तब्दील करती है. वाइल द पोर्टर बीज आर ब्रिंगिंग देयर हेवी बर्डन्स ऑफ नेक्टर टू द किंग. जो पोर्टर बीज होती है यानी जो कामगार या कुम्हार मक्खियाँ होती है, वो क्या करती है? वो उनका जो हेवी बर्डन होता है वो लेकर आती है और राजा के सामने, रानी के सामने पेश करती है. द सैड आइड जज्ड बजिंग इन अ बैड टेम्पर्ड मैनर. अब जो वहाँ पर सैड आइड जज्ड है, वो क्या है? बैड टेम्पर्ड मैनर में वहाँ पर बैठा हुआ है और वो देख रहा है सब चीज़ें. बजिंग इन अ बैड टेम्पर्ड मैनर, hands over the lazy yawning male bee to the light colored executor bees to carry out the death sentence, delivering, handing over. अब वो क्या कर रहा है? वो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो मुजरिम है उन्हें सज़ाएं दे रहा है, और जो लाइट कलर्ड एग्जीक्यूटर बीज है वो डेथ सेंटेंस को कैरी आउट कर रही है, उसे डेथ सेंटेंस को सब तक पहुंचा रही है. अब देखिए, ये जो पोयम है इसमें बहुत सारी इमेजरी का यूज़ किया गया है और इस पोयम को बहुत बेहतर तरीक़े से यहाँ पेश किया गया है. जो आवाज़ है उसके लिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमैटोपोइया का यूज़ किया गया है. एलिट्रेशन का इस पोयम में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, उसके साथ साथ इन्वर्जन का यूज़ किया गया है. उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.